Good morning students, welcome to our online sessions of Maths class 8 chapter number 1 real number. I hope you and your family will be safe in these pandemic situations, so without any unnecessary work don't go outside your homes, and if any necessary then use your mask, then you go outside the home. So stay home and stay safe, and using the digital study of medium, use our school YouTube channel and keep learning, keep revising and keep updating yourself as a part of study. Now we are discussing about the chapter number 1, that is called real number. In the previous lectures of real number of maybe a part 1 and part 2, we described what are the number systems like natural numbers, set of integers, whole numbers, rational, irrational, real, complex, etc. Which are the numbers generally we are discussing into our previous lecture. Also we just give a small descriptions how we can be implemented these numbers onto the numbers line. Okay. Also we are discussing about some of the properties which you have studied into your previous classes, like multiplications property, associative property, distributive properties. Okay, these are the properties which you have to study in the previous class. Based on this, how we can be simplify the questions that we are also discussing in our exercise 1.1. Also we are discussing what is called additive inverse, what is called multiplicative inverse, how we can be find this inverse and additive inverse, that should be asked in the previous questions. Now on the base of today's lecture, we just discussing how we can be represent the numbers onto the number line and how we find between numbers of two rational numbers. Okay. So first of all we just describe how we can be represent the numbers onto the number line, in which I will take one example, represent onto the number line, in which take I'll example 7/4 and -5/6. These are the two questions I'll take represent onto the number line. Represent on number line. How we can be represent that I will be check represent onto the number line. The representation of a number line, first I'll take 7/4. 7/4. That should be representation. So first of all, when you represent numbers onto the number line, just will use a specific formation of number line here. I'll make a number line here. Okay. In the previous class, I also give the explanations on a number line, a numbers which is originated from 0, which moving on a right hand side, that is a positive value, and from the originated which is moving on a left hand side, that is a negative value. Okay. For example, if it is my originated point from where the numbers that can be represented, that is my originated point, and if I'll moving from a right hand side, if I'll move from here right hand side, it moving on a right hand side, right side, always give positive value, always give positive value, and if moving from origin to left side, moving from left side, it will give negative value, right? Positive and negative value that can be implemented while moving on a right hand side, while moving on a left hand side. So based on this, we'll draw the questions of 7/4. So 7/4 is a part of the positive value, that is a something 1.70 approximate the answer 7/4. So it should be a greater than 1. So if we are moving on a right hand side, there we have to apply the value from right hand side. So how we can be apply 7/4 onto the number line? So first of all, it is my origin point O, 0, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. I will replace value from 0 to 10. I need 7/4. So entire formation that divided by 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 and 10/4. I will represent the values. I have to represent 7/4. So where is the 7/4? That is generally a part of the 7/4. I will represent 7/4 onto the number line. Similarly, I will take another example, -5/6. How I can be represent -5/6? So -5/6 representation. So minus value is there. So minus value, that's generally moving over where? It should be on a left hand side. So we'll start from the 0 here. The 0, -1, -2,
-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 and -10. I'll write 0 to -10, and which is divided by 6. 12 divided by 6. 6 -1 by 6, 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, 5 by 6, 6 by 6, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6 and 10 by 6. So which number I have to represent onto the number line? That is -5 by 6. So here is the -5 by 6. Easily, when the positive value is there, you have to moving on a right hand side, but if negative value is there, so you have to moving on a left hand side as a part of the representation. Now I'll take another example in which if we have to be denoted more than one values onto the number line, how we can be represent. So another example that take in which I'll take more than one numbers which should be represent onto the number line, like -2 by 11, -5 by 11 and -9 by 11. Okay, this is the questions that I have to represent onto the number line. Okay, so first of all I have to draw a number line here. I have to draw a number line as formation from here. It is a negative value, so I'll start it from the year 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 and -10. I'll write 0 to -10 individual all the values, that is divided by 11. So just divide by 11, 11, all the numbers that should be divided by 11s, 11, 11, 11, all the numbers that is divided by 11. Okay, so which are the numbers that I have to represent? -9 by 11, -5 by 11 and -2 by 11. So by using these methods, we generally implement all the numbers onto the natural part of the number system. Now that previously class we discussing about the natural number, which is a part of the positive numbers like 1 to infinite, which doesn't contain the zeros, were the whole number, that is also a part of the natural numbers in which 0 is additional numbers there and all the positive numbers is there. So natural number is what? It is a subset of whole number. As well as we discussing about the set of integers, we generally include the 0 as well as positive value as well as the negative values. Okay, now in that questions of the real number, when we are discussing about the real number is a combination of what? Rational number and irrational number. Rational plus irrational, both are the numbers are generally in a part of the real number. So if we have to be classified that rational number and irrational number, how we can be classified? Now rational number is always been a part of numerator and denominator, like numerator is a and b is a part of the a by b where b doesn't equal to 0. So rational number, it may be a 0 rational number where the numerator is 0, it may be a negative rational number when -1 by 4 and positive rational number that is 1 by 4, whatever. The rational number is in a form of 0 rational number, positive rational number and negative rational number, तीनों में हो सकता है. तो जिस नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर भी मिलता हो उसको भी आप रेशनल नंबर में कंसिडर करते हैं. लाइक √16 का स्क्वायर 4 मिलता है, √25 का स्क्वायर रूट 5 मिलता है, √36 का स्क्वायर रूट हमें 6 मिलता है. तो नंबर्स विच जनरली implement this perfect square, it is generally called as a rational number. ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो तो रेशनल नंबर होता ही है, बट जिस नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट भी मिलता हो वो भी आपका क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है. जैसे √81 है तो 9 आपको मिलेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, इसीलिए वो रेशनल नंबर होता है, यानी आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं. बट इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर में हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलते हैं. जैसे √2 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, √15 है. ऐसे नंबर्स डजंट गिव एनी स्क्वायर रूट वैल्यूज, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ इरेशनल नंबर. इसीलिए आप उसको क्या कहते हो? इरेशनल नंबर में कंसिडर कर सकते हैं. तो अभी ये जो नंबर्स होते हैं ना, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर. उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स आती है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड आती है जिसके थ्रू हम रेशनल इरेशनल को प्रूव कर सकते हैं, पर वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे. बट रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा याद रखना है कि रेशनल नंबर हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, या अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा. इरेशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, वो हमेशा स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही होगा. लाइक √2, √3, √5, √7, √8, √11, 13, 15 एटसेट्रा, वो हमेशा स्क्वायर रूट की वैल्यू में होगा, इसीलिए उसको इरेशनल नंबर कहते हैं.
अभी रेशनल और इरेशनल क्लासीफाइड करने के लिए दो मेथड्स और भी है, जिसमें हमें देखना होता है उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी आते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, दो तरीके के होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ, फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करके फाइंड करने हैं रेशनल नंबर्स, उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या डिफरेंस है, पहले तो हमें समझना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स व्हाट, पहले वो समझते हैं, ठीक है। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नो, किसी भी नंबर का अगर आप डिवाइड करते हैं, कोई भी दो नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हैं, लाइक a बाई बी का फॉर्म में कोई नंबर्स है एंड वी डिवाइड द टू नंबर्स, और आपको रिमाइंडर अगर जीरो मिल रहा है, डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर जीरो मिल रहा है ना, तो वो नंबर्स हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है, जहाँ पर रिमाइंडर आपको जीरो मिल रहा है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 50/5, 50/5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, दैट शुड बी अ 10, है ना। तो वैसे नंबर्स में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसका रेशनल आपको, जिसको डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर जीरो मिलता है। तो अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो मिल रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमें कौन से ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे रिमाइंडर जीरो मिलेगा, जहाँ पे आप उसको कम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि व्हेन डिनोमीटर, आपका जो डिनोमीटर है, व्हेन डिनोमिनेटर 2n इंटू 5m इस फॉर्म में अगर होता है, व्हेन द डिनोमीटर इज इन अ फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, इस फॉर्म में अगर हमारा डिनोमीटर रहता है तो वो आपका कौन सा नंबर बनता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हेन, जब हमारा डिनोमीटर 2n और 5m, यानी किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और उसका डिनोमीटर 2 या 5 के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या 2 और 5 को छोड़ के कोई और फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अभी मैं लेता हूँ 25/16, 25/16, 25 मीन्स व्हाट, 5 स्क्वायर, और 16 मतलब क्या, 2/4। तो डिनोमीटर कौन सा फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है, तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या सपोज ऐसा मैंने लिखा हो 81/125, 81 यानी 9 स्क्वायर, और 525 क्या हो गया, 5 क्यूब, ठीक है। तो 5 क्यूब यानी क्या हो गया, 5 के फॉर्म में है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या सिंपल दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा हो 11/50, तो 11 इंटू 50 यानी क्या, 2 इंटू 25, 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये भी 2 और 5 के फॉर्म में है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करने को कहा है तो व्हेन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में अगर रहता है तो वो नंबर्स हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अगर उसके अलावा कोई नंबर्स है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 13/85, 13 और 5 इंटू 17, तो 5 के साथ क्या नंबर मिल रहा है, 17। अगर 5, 2 और 17 है, ओके, मान लो 850 है आपके पास, तो 5 2 10 इंटू 70, 170 हो गया आपका, ठीक है, 170 लिखा है। 5 इंटू 2 10 इंटू 70, 170। तो 5 और 2 के अलावा यहाँ डिनोमीटर में क्या है, 17 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा कब मिलता है, जब डिनोमीटर में 5 या 2 का फॉर्म हो, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है हमेशा रेशनल नंबर ही डिनोटेट करता है। अब एक दूसरा आता है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो तरीके के फॉर्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका डेसिमल अब जब डिवाइड कर रहे हो ना तो वो इंटीजर के फॉर्म में आके इन्फिनाइट फॉर्म मिले, रिमाइंडर जीरो ना मिले। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा, वो इन्फिनाइटली डिवाइड होता ही जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो आते हैं, एक होता है रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग, और एक होता है नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, आप इसको कह सकते हो। इट इज अंदर फॉर्म इज कॉल्ड रिपीटिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो दो तरीके के फॉर्म हमें मिलते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जहाँ पे हमें डिनोमीटर में 2 और 5 का फॉर्म नहीं मिल रहा है और डिवाइड करने पे भी अगर रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है।
और इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो मेथड्स होती हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब रिपीटिंग यानी जिस पे बार लिखा हो, ऐसा मैंने लिखा हो 0.6666, ऐसा नंबर रिपीट अगर हो रहा है ना तो आप इसको 0.6 बार लिख सकते हैं, बार। तो अगर ऐसा बार का निशानी किया हो तो इट मीन्स दैट नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बार बार रिवाइज हो रहा है। तो अगर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग में, वो नंबर हमेशा रेशनल होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। उसको से बार के निशानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको आप इजीली p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो रेशनल है। बट जो नॉन रिपीटिंग है, बार बार चेंज होता हो, जैसे 0.10 100 100 ऐसे आगे जा रहा हो, तो बार बार नंबर अगर चेंज हो रहा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन होता है रेशनल और इरेशनल के बारे में। अभी हमें फाइंड करना है, कोई भी दो नंबर्स दिए और उस दो नंबर्स के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हाउ वी कैन बी फाइंड, ये अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करना है। दो नंबर्स दिए और दो नंबर्स के बीच के मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड रेशनल नंबर्स, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर। कोई भी दो नंबर के बीच के मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन बी फाइंड, इफ वी हैव टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, देन हाउ वी कैन बी फाइंड, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए उसमें अलग अलग मेथड्स होती है फाइंड आउट करने के लिए। जैसे दो नंबर्स दिए हैं और उसके बीच के मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो लेट आई सपोज कि मुझे 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कोई भी दो नंबर्स के बीच में मुझे अगर 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला आता है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 रेशनल नंबर्स को आप सपोज कर लो, लेट Q1 Q2 Q3 Q4 आर द 4 रेशनल नंबर्स। ये 4 मेरे रेशनल नंबर्स ऐसा मैंने सपोज कर लिया, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब ये 4 रेशनल नंबर में से अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है, 1/2 a प्लस बी। तो a यानी कि फर्स्ट नंबर, b यानी सेकंड नंबर, उसका यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो। मैं केवल एक दो नंबर्स फाइंड करके दिखाता हूँ, बाकी आपके बुक में जो मेथड दिए उसके अकॉर्डिंग टू सॉल्व करेंगे। लेट मेरे पास एक नंबर है a = 1/2 और b = 1/3, ऐसे दो नंबर्स हैं मेरे पास, 1/2 और 1/3। इसके बीच के मुझे 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, फाइंड 3 रेशनल नंबर, ठीक है। आई हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 और 1/3। इसके बीच के 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। इसको a और इसको b, कोई भी दो वैल्यूज़ आपके पास कंपैरिजन में होंगे, उसको a और b ऑल्टरनेट ले सकते हैं। तो पहली बार हम 3 रेशनल नंबर्स है, तो Q1 लेते हैं, Q1 = 1/2 1/2 प्लस 1/3, 1/2 1/2 और 1/3 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा। सो 1/2 5/6 मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 5/12। सो 1/2 और 1/3 के बीच में पहला रेशनल नंबर क्या मिला, 5/12। अभी दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करो Q2। Q2 के लिए क्या करो, अभी ये वैल्यू मिली है 5/12, यानी एक नंबर इसको ले लो और इन दोनों में से किसी एक नंबर को ले लो। सो 1/2 5/12 प्लस 1/3, इसको लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सो 1/2 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 5 + 4, सो 1/2 9/12, तो 9/12 2 = 24। सेकंड रेशनल नंबर 9/24। वैसे थर्ड Q3 आप 9/24 5/12 को भी लेकर ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा। तो जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स, आप इस मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, या तो आपके बुक में जो मेथड दिए उसके अकॉर्डिंग टू सॉल्व करते हैं, जिसमें हम डिनोमीटर को बैलेंस करके सॉल्व करेंगे। जिसमें डिनोमीटर को कैसे बैलेंस करना और कितने नंबर्स फाइंड करने हैं वो हम डिस्कशन करते हैं इसमें, जो आपके बुक में दिया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया है आपको कि हमें फाइंड करना है, पहले तो एक नंबर दिया कि फाइंड द 5 स्मॉलर नंबर देन 2 से स्मॉलर नंबर हमें फाइंड करना है। सो 2 से अगर मुझे स्मॉलर नंबर फाइंड करना है तो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे 2 से स्मॉलर अगर यूज़ करना है तो 1 है, 0 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है, सब 2 से स्मॉलर है। 1 इज़ अ स्मॉलर
2 इज सॉरी 0 इज स्मॉलर, 1/2 स्मॉलर, 1/4 स्मॉलर, 1/3 स्मॉलर, ये सारे उसके स्मॉलर नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए अभी हमें एक क्वेश्चन फाइंड करना है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। फाइंड, मैं 10 तो नहीं फाइंड करूँगा पर थोड़े मोड़े फाइंड कर देंगे। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, -2/5 एंड 1/2। चलिए ऐसा मैंने दो क्वेश्चन लिए, -2/5 और 1/2, इसके बीच के मुझे 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मुझे 10 रेशनल नंबर्स इसके बीच के फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा एक सर्टेन नंबर से। 10 फाइंड करना है तो मुझे इन दोनों के बीच में मिनिमम 10 नंबर्स का डिफरेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे -2/5 और यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, ठीक है। चलिए 5 और 2 इन दोनों का डिनोमीटर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा डिनोमीटर, यहाँ पे 2 5 10 10 है तो यहाँ पे भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और ये हो गया 10/10। -4 और 10 के बीच में 10 नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 20 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -2 × 4 अपॉन 5 × 4, सो -8 अपॉन 20। यहाँ 20 लाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1/10 × 2/10, सो 10 अपॉन 20। तो कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच की अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो पहले उसके डिनोमीटर को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमीटर आपको सेम करना पड़ेगा बाय यूजिंग द सर्टेन नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर उन दोनों के बीच में आपके पास जो नंबर्स मिलते हैं वो, अभी आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 10 रेशनल नंबर्स नहीं मिलते, इसीलिए उसके लिए मुझे डिनोमीटर को बढ़ाना पड़ा है। तो 8/20 और 10/20 उसके बीच के रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। सो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, हैंस 10 रेशनल नंबर बिटवीन कौन से नंबर्स, -8/20 एंड 10/20 आर। इसके बीच के रेशनल नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं, तो कौन कौन से रेशनल नंबर हो जाएंगे, आप अलग अलग रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। -8 के फॉर्मेशन में आगे की तरफ जाएंगे तो -7/20, -4/20, -1/20, 0, 1/20, 3/20 एट्सेट्रा, ठीक है। ऐसे हम नंबर्स बिटवीन 10, 8/20 और 10/20 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे, दीज आर द जनरल रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/5। तो कभी भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस फाइंड करने हो तो उसके डिनोमीटर को बैलेंस करके ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2/3 और 4/5 लेते हैं, ठीक है। 2/3 और 4/5 मैं केवल डिनोमीटर बैलेंस करूँगा, हम 5 फाइंड करते हैं। वी जस्ट फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करते हैं। तो 2/3 और 4/5, 2/3 एंड 4/5, 5 रेशनल नंबर्स ही मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो एक नंबर दिया है 2/3 और दूसरा मुझे दिया है 4/5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मुझे इसके डिनोमीटर को बैलेंस करना पड़ेगा। सो 2/3 और 4/5, ठीक है। चलिए इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10/15 हो जाएगा, इसको 12/15 हो जाएगा। देखिए क्यों हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो डिपेंड है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये डिनोमीटर यहाँ मल्टीप्लाई 5 3 15 और ऊपर 5 यानी 10/15 हो जाएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/15, यानी 10/15 और 12/15 के बीच में एक ही नंबर मिलेगा मुझे, 11/15। तो मुझे तो 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने, तो मुझे नंबर्स को थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा। तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 × 20, 3 × 20 हो जाएगा 40/60 और ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 12 और 5 × 12 हो जाएगी 48/60। तो दो नंबर्स मिले मुझे, 40/60 और 48/60। तो 40/60 और 48/60 के बीच के नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, लाइक 41/60, 42/60, 43/60,
44/60 और 45/60। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे दैट इज़ द बिटवीन द रेशनल नंबर्स ऑफ 40/60 टू 48/60। ऐसे आप नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? केवल मुझे इसके डिनोमीटर को ही बैलेंस करना, डिनोमीटर को बैलेंस करने पे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, 3/5 और 3/4। 3/5 और 3/4 उसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है? जैसे 3/5 एंड 3/4। अब इसके बीच के भी मुझे फाइंड आउट करने हैं 5 रेशनल नंबर्स, तो भी मैं अपने हिसाब से कोई भी डिनोमीटर को बैलेंस करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेरे पास 2 नंबर्स है, एक है 3/5 और दूसरा है मेरे पास 3/4। ठीक है, तो डिनोमीटर बैलेंस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना, तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/20 होगा, 15/20 होगा। तो 12 और 15/20 में हमें पॉसिबिलिटी है नहीं उतने नंबर्स मिले, तो मैं इसको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 × 32 और 5 × 32, 96/160। इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 40, 4 × 40, 120/160। सो एक नंबर मिला 96/160 और दूसरा मिला 120/160। इसके बीच के आप 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, लाइक 97/120, 98/120, 100/120, 102/120, 103/120, 105/120, 108/120, 112/120। और तो इस तरह से आप बिटवीन द रेशनल नंबर्स यू कैन बी राइट। तो आई होप ये जो रेशनल नंबर्स फाइंड करना है या नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना है या टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या आपको इजीली समझ में आया होगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन में है, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिस, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग द डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप लर्निंग ऑन दिस चैप्टर्स, मोर प्रैक्टिस ऑफ द इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज, एंड always be stay at home, unnecessary don't go outside the house, so stay home, stay safe, and using the digital medium of learning keep your studies updated. Okay, still students, bye.